Prime Minister Modi's face that was prominent on the BJP manifesto. Now, Delhi elections are being fought on Prime Minister's face. Listen in to all the promises that are now being made by Home Minister Amit Shah, the final part and the full manifesto of the BJP now out for the national capital. काम करना और वादे करना, ये दो आप पार्टी और भाजपा की अलग अलग संस्कृति है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं, और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ। करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आपके कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए हैं। और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आपने दो काम जरूर किए। जब प्रदूषण बढ़ता है दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरे राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देना। इसके अलावे आपने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा, और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो, तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। My colleague Shreya is with me on the story. Shreya, we did see it was Sheesh Mahal once again that took the center stage. Now, on one side, it was Home Minister Amit Shah who made all these promises. On the other side, also did a comparison with Aam Aadmi Party and with Arvind Kejriwal. A sort of a theme was Kya Hua Tera Wada? All those promises that Arvind Kejriwal has been making, at least over the past 10 years, all those promises were being asked by Home Minister Amit Shah, saying what happened to the promises that you had made. Well, you know, this is a very difficult, line also for the Aam Aadmi Party to actually respond to, because we'll definitely be seeing one response coming very soon, as has been the war of press conference dominating in the national capital. But yes, Amit Shah has once again harped on the entire Sheesh Mahal controversy, and the reason is because, remember, the entire name and basis of the Aam Aadmi Party was from the anti-corruption movement. One of the reasons why the middle class actually connected with the Aam Aadmi Party is also because of this movement. Now what the BJP is trying to bank on is an image which projects a man who promised to be an Aam Aadmi, but here he's actually spent 51 crores on a Sheesh Mahal merging bungalows, where he had actually promised not to take any kind of government facilities for ministers and not get any special preferences in bungalows. This was the same Aam Aadmi Party who was counting the number of ACs at Sheila Dikshit's residence, and now he's actually gone ahead to splurge on and create a Sheesh Mahal. So clearly that is something that the BJP is banking on. That's also something we have seen the Congress speaking very largely about. Whether that actually resonates and goes down to the voters is something that will be interesting to see. But clearly the BJP is not stopping at the jibe of Aam Aadmi Party losing its Aam Aadmi Party's ethos that they had actually promised the Delhi voters 10 years back when they had actually come to power on the wave of the anti-corruption Anna movement. Right, Shreya, please stay on with me. It was the liquor scam, the Sheesh Mahal. All of them once again took the center stage today when Home Minister Amit Shah spoke about the fact that these are the same people who had made various promises, but just look at the kind of places they were living in, the kind of Sheesh Mahal that has been built, and also touched upon the liquor scam and said that most of your ministers, including Arvind Kejriwal, you're out on bail, so do not come on the stage and say that the case is over, because the case definitely is not over. Listen in. 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर
50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिल्लर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है। और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं, जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं, और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं, मैं इससे कन्विंस हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ढेर सारे ऐसे वादे इन्होंने किए कि जिनको पूरा करने के लिए इनके पास ना तो समय है, ना इच्छा है, ना संकल्प है।